Good morning, student of class 4. How are you? I hope student you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class student. Today date is 13th July 2021 and I am teaching you chapter number 5. Name of the chapter Food We Eat. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video I explained you that about the nutrients, and these nutrients are divided into 5 groups, that is carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Okay, so student, so I explained you about what are carbohydrates. Carbohydrates are energy giving food. Okay, we do lot of activities in our day to day life, and for this we also need a energy. So how we get the energy for doing all this activity, even just studies also, that is by the food which are rich source of carbohydrate. So carbohydrate, that is the reason carbohydrate is known as energy giving food, and it is very important for the small children that they eat such food which have lot of carbohydrate, foods which are rich source of carbohydrates. Okay, so and even the person, those who are doing physical work, they also need more carbohydrate in their diet. So these are the things which I discuss today. I am just doing the recapitulation. If you want to see in detail about the carbohydrate, so you can watch the previous video. I am just doing recapitulation what we have done in the previous video. Okay, and the next thing which I explained you, that is the fats. Fat give more energy than carbohydrate. Okay, fats give more energy than carbohydrate, and they keep our body warm also. But why we have to take fat in a limit amount? Reason is that if you take more and more fat in your diet, in your food, if you start eating those foods which are a rich source of fats, so the drawback of the fat is only that it store inside our body. That is the drawback of the fat. That is the reason we say that it give more energy than carbohydrate, but we should take fat in a limit amount, because if you eat those foods which are rich source of a fat, then this fat start storing inside your body. And as you know, there are many internal organs in our body. So due to this, student, what happens? Due to this extra fat, they start disturbing the functions of other internal organs. Due to extra fat in the body, the people are suffering from many diseases: high blood pressure, heart attack, liver problem. If fat is stored in the liver, then it's a, we say it as a fatty liver. So lot of diseases are due to extra fat in the body. So these two things which I explained you in my previous video, that is carbohydrate and fats. Now today we will start with the another nutrient which is very important for our body, that is protein.
Okay, that is the proteins. So this is another nutrient, that is a protein. So protein rich diet is very essential, बहुत जरूरी है protein rich diet, especially for the small kids, because due to eating protein rich diet it help in the growth of the body. ठीक है, आप अभी बेटा थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ रहे हो, अभी आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, आपकी बोन्स भी, आपकी ग्रोथ हो रही है तो आपके बोन्स भी बड़ी हो रही हैं, ठीक है. सो दैट इज द रीजन स्पेशली स्मॉल किड्स दे मस्ट टेक diet which contain lot of protein, so it helps in the growth and they also repair the damaged parts of the body. Is it clear? It also help in the growth. So why protein is very essential in our diet? Reason is protein help us to grow. Okay, next point, they also repair, okay, they also repair the damage, they also repair the damaged parts of body, parts of the body. And protein is known as body building nutrients. Body building nutrients. Is it clear? That is the reason it is also known as, that is the reason this is also known as body building nutrients और body building food भी आप कह सकते हो, ठीक है. अब देखो our body why we need protein, ठीक है, and protein nutrient is also not stored in our body. जो न्यूट्रन बॉडी में स्टोर होता है that is only fat, ठीक है. तो बेटा प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है. that is the reason in our diet daily we eat such type of food from which we get the protein, ठीक है. I will discuss all the point what are the benefit by eating the protein, that then you will understand why protein is a very important nutrient for our body, and that is the reason protein is also known as body building nutrient, or you can also say that protein is also known as body building food. Okay, when I will write all the points on the board, then you will understand why it is very essential, ये बहुत जरूरी क्यों है, ठीक है. So our body uses protein to build and repair tissues. Is it clear? जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं that is also due to the protein से ही बनते हैं, ठीक है. और हमारी बॉडी सबसे स्मॉल पार्ट से बनी है that is known as cell, और ये सारे सेल्स में प्रोटीन है, ठीक है. our body is made of very small part that is known as cell, और same type of cell they unite together to form the tissues, and when tissue join together they form the organ, and when many organ work together that is known as organ system. So our body is made of very small part cells, and all cells are inside the all cells are protein is present in all the cells. Is it clear?
नाउ सी प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, जो आपकी मसल्स हैं, बोन्स हैं, ठीक है, आपके कार्टिलेज है, स्किन है, ब्लड है, सो ऑल प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो आपकी बोन्स होती हैं ना बेटा, आपकी बोन्स फॉर्म्स होती हैं, आपकी मसल्स होती हैं, ठीक है, सो टू फॉर द स्ट्रॉन्ग हाउ द मसल्स डू टू प्रोटीन, ओके, प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, भी आपकी इसी से बनी है, मसल्स भी बनी है, कार्टिलेज भी इसी से बने हैं, स्किन है आपकी, ब्लड है, ठीक है, आपके हेयर्स हैं, आपके नेल्स हैं, सो ऑल दीज आर मेड ऑफ द प्रोटीन। ये सब किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन ऑल द एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन, जितने भी सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, दे कंटेन प्रोटीन, ठीक है। एंड वी आल्सो नीड प्रोटीन टू रिपेयर आवर सेल्स एंड इवन न्यू सेल्स आर फॉर्म। नए सेल भी इसी से फॉर्म होते हैं, किससे? प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। इज इट क्लियर? इट रिपेयर आवर डैमेज सेल्स एंड मेक न्यू वंस, ओके। प्रोटीन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेशली इन द चिल्ड्रन। इसीलिए मैंने बोला बच्चों के डाइट में प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, तभी उनकी ग्रोथ होगी। इज इट क्लियर? सो protein makeup, and next point which I have already discussed with you, that your nails, your hair, bones and muscles, they all are made of the protein. So protein gives tissue and organ, and the organs which are in our body, it give shape to these organs, और even आपका immune system भी प्रोटीन से बना है, ठीक है। that is the reason protein is a protein build bones and muscles in our body. That is the reason protein is a very important, or you can say protein is very essential nutrient for us, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी नहीं बनाती, ठीक है। क्यों हम ये न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लिया, फैट्स कर लिया, अब प्रोटीन पे हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर नॉट मेड इन आवर बॉडी, सो how we get this nutrient, student? We get this nutrient by eating different types of a food. different types of food हम जब खाते हैं तो ये nutrients हमारे body में आते हैं, ठीक है। प्रोटीन is a body building food, क्योंकि आपके bones, आपके muscles, blood, skin, hair, nails, even organs, and even protein is present in the cell, and cell is the स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी बॉडी सबसे स्मॉल पार्ट से जो बनी है वो सेल्स ही हैं। तो फॉर ऑल दीज थिंग्स विच इज रिस्पॉन्सिबल, द प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग। दैट इज द रीजन प्रोटीन इज अ वेरी इंसिशनल न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। अब प्रोटीन से, अब इंसिशनल न्यूट्रिएंट है, अब देखो हमें डेली प्रोटीन ऐसा फूड खाने चाहिए, डेली वी हैव टू ईट सच टाइप ऑफ फूड विच कंटेन प्रोटीन, बिकॉज उसका रीजन ये है बेटा कि प्रोटीन इज नॉट स्टोर इन द बॉडी, ठीक है। प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होता है कि आपने सोचा कि आज हमने प्रोटीन रिच डाइट खा ली है, अब 2-3 दिन बाद खाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसकी नीड हमेशा रहती है, और ये आपको मिलेगा कहाँ से? बाई ईटिंग द फूड विच इज रिच सोर्स ऑफ ए protein. Is it clear? So few points note down about the protein. 2 points I have already written on the board. Protein help us to grow. They also repair the damaged parts of the body, because they repair the old cells also, damaged cells also, and even they forms a new cells. body में new cells भी ये protein से ही form होते हैं, ठीक है। इवन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी इंजरी हो जाती है, ठीक है, स्किन कहीं आपको चोट लग गई, स्किन इज रिमूव्ड, सो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट अ न्यू स्किन विल कम, ओके। तो ये रिकवरी भी किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की वजह से होती है, ठीक है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई, तो ऐसे लोगों को हम लोग हाईली रिच प्रोटीन डाइट देते हैं, जिससे उनकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा वो अपने प्रोटीन लेंगे डाइट में,
उनकी बॉडी उतनी जल्दी फिर से स्ट्रांग होने लगेगी। इज इट क्लियर? तो पर्सन विच आर सफरिंग फ्रॉम बाई चांस दे हैव एनी एक्सीडेंट और समथिंग, सो ऐसे पर्सनस को, पेशेंट्स को हम लोग प्रोटीन रिच डाइट देते हैं सो दैट दे अगेन बिकम फिट एंड हेल्दी। इज इट क्लियर? सो दैट इज द रीजन प्रोटीन इज वेरी essential nutrient for our body. Okay, so please note down these points about the proteins, because when you write in your rough copy na, and when you read it or revise this topic, then the things you are able to understand. Is it clear? Because in your book only 2 lines are given. It helps to grow, it repair the damaged cells. Okay, so note some extra thing from the board. Our body use protein. Our body use protein to make hormones. Is it clear? To make hormones. Next, protein is an important building block of protein is an important building block of bones. ठीक है? bones, muscles, cartilage, skin and blood. ठीक है? देखो, प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स. ठीक है? बोन्स फॉर्म हो रही हैं इससे, क्योंकि बोन्स के भी अपने लिविंग सेल्स होते हैं. ये क्लास 5 में आओगे तो पढ़ोगे. बोन्स के अपने लिविंग सेल्स होते हैं. ठीक है? और अगर बोन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ द बोन इज डैमेज, और उसको आप लोग कहोगे कि फ्रैक्चर बाय इन एक्सीडेंट. इफ द बोन इज फ्रैक्चर मतलब ब्रेक हो जाना, तो हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टर चढ़ाते हैं. ठीक है? तो हम लोग प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो वहां हम लोग क्या करते हैं? वो इसलिए होता है जिससे कि मूवमेंट ना हो बोन्स में. बोन्स को बोन के सामने कर देते हैं और उसको प्लास्टर कर देते हैं. सो आफ्टर 1 month और 2 months द बोन ज्वाइन टूगेदर. ठीक है? सो बोन्स ज्वाइन हो जाती हैं. ठीक है? तो बोन्स की भी ग्रोथ होती है, बोन्स के भी अपने लिविंग सेल्स होते हैं. ठीक है? ये सब आप लोग नेक्स्ट क्लास 5th में पढ़ोगे. ठीक है? सो प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स. ठीक है? मसल्स, हैव यू, तुमने सुना होगा कि दोज पीपल हु डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स पर्सन्स. आप स्पोर्ट्स पर्सन्स को ले सकते हो, या तो फिर दोज हु डू जिम एक्सरसाइजेस, जो जिम में जाते हैं, वो हाईली रिच्ड प्रोटीन डाइट लेते हैं. वो ऐसे फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा हो. ठीक है? टू मेक देयर, टू फॉर्म मसल्स. इज इट क्लियर? सो प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, स्किन एंड ब्लड. ठीक है? सो ऑल दीज आर, मतलब बॉडी के मैक्सिमम जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं वो किससे बने हैं बेटा? प्रोटीन से ही बने हैं. ठीक है? बॉडी के जितने भी पार्ट्स, आपके ऑर्गन्स, पार्ट्स, ये सब बन रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन किससे हो रही है? प्रोटीन से हो रही है. इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंसेंशियल न्यूट्रिएंट है आपका प्रोटीन. ठीक है? 1 by 1 हमने डिस्कस किया. देखो, ग्रोथ हो रही है, प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट मैंने लिखवा है ना, प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स. जब आपकी ग्रोथ होती है तो आपकी बोन्स भी, उनकी भी हाइट बढ़ती है. ऐसा नहीं है कि आपकी बोन्स उतनी रह जाएंगी, तो बोन्स भी की भी हाइट बढ़ती है.
ठीक है, आपकी मसल्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, कार्टिलेज है, स्किन है, ब्लड है। कार्टिलेज तुम्हारे लिए एक न्यू वर्ड है। ठीक है, कार्टिलेज। कार्टिलेज अभी तुम लोग तो अभी पढ़े ही नहीं हो, तो भी अब मैंने बोर्ड पे लिख दिया है तो मैं बता देता हूँ। कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ये एक आउटर कवरिंग होती है जहां पे दो बोन्स मिलती है ना, मीट करती हैं, जहां जिसको ज्वाइंट बोलते हैं। तो वहां पे बोन्स किससे कवर्ड होती हैं? कार्टिलेज से। क्योंकि बोन्स इतनी हार्ड होती हैं, अगर कार्टिलेज नहीं होगा तो वो आपस में रब करने लगेंगी। ठीक है, आपस में रब करने लगेंगी, सो हड्डियां घिसने लगेंगी। तो उनको घिसने से बचाने के लिए जो जहां पे ज्वाइंट्स होते हैं, तो वो ज्वाइंट्स किससे कवर होते हैं? हमारे कार्टिलेज से कवर होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये देखो, ये ईयर, ईयर में देखो फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल मूव कर जा रहे हैं, तो ये कार्टिलेज ही है। ठीक है, आपका नोज, नोज टच करते हुए नीचे दब भी जाता है। ठीक है, सो कार्टिलेज क्या करती है? बोन्स को रब होने से बचाती है। ठीक है, जहां पे जॉइंट्स होते हैं वहां पे बोन्स की आउटर कवरिंग किससे होती है? इसी कार्टिलेज से होती है। ठीक है, दैट इज द कार्टिलेज। और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ना। ठीक है, स्किन एंड ब्लड हो गए। देयर आर फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट द प्रोटीन, सो आई रब द बोर्ड एंड देन आई राइट इट। Protein help us to grow. First of all, I repeat this point. Protein help us to grow. They also repair the damaged part of the body. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, ये डैमेज सेल्स भी बनाता है और न्यू सेल्स भी फॉर्म करता है। और बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो रहा है, इंजर्ड हो जाए, इफ द skin is removed from there, after some days you will see that the new skin will come. So all these things are possible due to the protein. ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू द प्रोटीन। ओके, प्रोटीन, आवर बॉडी यूज प्रोटीन टू मेक हार्मोन्स। हार्मोन्स भी बनते हैं हमारे बॉडी में। सो ग्रोथ हार्मोन्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारी हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो ये भी प्रोड्यूस किससे बन रहा है? प्रोटीन से। प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स। ठीक है, बोन्स से मसल्स भी फॉर्म हो रही है, कार्टिलेज, स्किन एंड ब्लड। So write few more points about protein. Every cell, because our body is made of very small part, जिसे cell बोला गया है। Is it clear? So every cell in the human body, every cell in the human body, every cell in the human body, clear? Every cell in the human body contains protein. Is it clear? Every cell in the human body contain protein. Protein is important for growth and development, especially for the small children. This point I have already written. Protein make, another important thing is that protein make up your hair. Okay, hair, nails, bones and muscles. Protein gives tissues and organs their
shape. So these are the few important points about the protein. Every cell in the human body contains protein. Protein make up your hair, nails. आपके जो hair हैं, nails and bone, muscle, they are all made of a protein. Protein gives a tissue and organ their shape. जो आपके body के organ हैं उनको shape भी कौन दे रहा है? Protein. So that is the reason इसको building block कहा गया है. ठीक है, जो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स हैं अगर वो डैमेज हो जा रहे हैं उनकी रिपेयर करना, न्यू सेल्स को फॉर्म करना, और स्पेशली बच्चों में तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका ग्रोथ टाइम होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. सो दे नीड डाइट विच इज रिच इन प्रोटीन. ओके, सो देयर आर मेनी फंक्शंस विच आर प्रोवाइडेड बाय दिस न्यूट्रेंट प्रोटीन. और इसे हमें हमेशा ऐसे फूड्स लेने हैं, डाइट में ज़्यादा करना है क्योंकि प्रोटीन इज नॉट स्टोर इन द बॉडी लाइक अ फैट. ये मैंने फिर बता दिया आपको, फैट की तरह प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं करता. ठीक है, सो दैट इज द रीजन वी मस्ट ईट डाइट दैट इज रिच इन प्रोटीन. सो अनदर थिंग क्या है जो अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बाई चांस इफ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग प्रोटीन रिच डाइट देते हैं. ठीक है, जिससे उसकी रिकवरी क्या हो जाए, फास्ट हो जाता है. ठीक है, प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखता है. ठीक है, प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखता है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन. नाउ वी विल डिस्कस now let's discuss what are the sources. So what are the from where we get the protein? Milk, or you can write the sources of protein. So in which type of food you will eat, then you will get protein. So that is the milk. This is milk. Cheese, this is also a milk product. ये भी मिल्क का प्रोडक्ट है चीज बेटा. ठीक है, एग्स हैं, एग्स, पल्सेस, जितनी भी आप दालें खाते हैं ना उन सब में आपको प्रोटीन मिलता है. ठीक है, सो एग, पल्सेस, पीज और बीन्स में सोयाबीन, मीट एंड फिश. फिश में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है. फिश में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है. फिश हैव plenty of protein. So these are the sources of protein. देखो इसमें से that is the reason. देखो बहुत से लोग नॉन वेज भी खाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं नॉन वेज नहीं भी खाते हैं. तो जो थिंग्स के मैंने नाम बोर्ड पे लिखे हैं इसमें से सम थिंग्स विच आर फॉर एग्जांपल मिल्क है, चीज़ है, पल्सेस है, पीज है, सोयाबीन्स हैं. ये सब वेजिटेरियन भी इजिली खा सकते हैं. इज इट क्लियर? मिल्क, चीज, पल्सेस, पीज एंड सोयाबीन्स. सो दीज food is taken by the vegetarian people also. And non-veg, that is the egg, meat, fish, these are the non-veg foods. Okay, so even those people who don't eat non-veg, flesh of other animals, or don't eat the egg,
they can eat these types of things and they can get the protein in their diet by eating these types of things: milk, cheese, pulses, peas and soya beans. Okay student, we will continue this topic in the next video.